اللهم صل على Ayti Balatar Salawat. Muhammad Ali Muhammad Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Nare Hadri. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء ورتق به المفاتق وصاور به المغالب زلل به الصعوبة وسهل به الحزون حتى سرها الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الشمس والقمر داعبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صلوات. Var Muhammad ve Ali Muhammad Bulantar Salawat. Nare Hadri. عزیزان محترم، اس دنیا میں فقط ایک صاحب کمال ذات ہے جو ذات احدیت ہے. اس کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کی کوششیں، ان سب کی عادتیں، ان سب کے افعال و اعمال مختلف ہیں. وہ احد ہے اور تم ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہارے انداز مختلف ہیں، تمہاری عادتیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں.
لیکن ان مختلف عادتوں کے ساتھ ہم کو اسی زمین پر رہنا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول اور تعلقات کو قائم کرنا ہے، اس لیے کہ انسان جبلی طور پر ایک معاشرتی جانور ہے، سوشل اینیمل ہے، یعنی آئسولیٹڈ زندگی نہیں گزار سکتا، مدری الطبع ہے۔ ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی تشکیل دے کر رہتا ہے، واسطہ دوسرے انسانوں سے پڑتا ہے، عادتیں مختلف ہوتی ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ محنت کرے اور اس کا ثمر حاصل کرے۔ اسی دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں جو خود کوشش نہیں کرتے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے محنت کریں واہ 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 اور یہ ان سے ثمر چھین لے۔ چھین واہ 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 نہیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان کی عادت یہ ہے کہ اس کو اپنا حق ملے، اور اگر اپنا حق نہ مل سکے کسی کاہلی کی بنا پر، تصاویر کی بنا پر، لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے دوسرا اس کو چھیننے نہ پائے۔ تو پہلی عادت انسان کی متمدن ہے، سوسائٹی تشکیل دیتا ہے۔ دوسری عادت انسان کی بہت حریص ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا، اب یہ محض ایک مثال ہے، مجلس میں بعض حضرات سب سے پہلے آتے ہیں، بعض سب کے آخر میں آتے ہیں، بعض ایسے ہیں سب سے پہلے آ کر پیچھے رک جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو بعد میں آ کر سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی مشاہدہ نماز جماعت میں بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ پہلی صف میں پہلے سے موجود ہیں، اگر نماز بھی اہم ہو، مثلا جمعۃ المبارک کی نماز ہو، اور مثال دوں اگر ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کی نماز ہو، تو میں نے جتنی نوک جھونک اس نماز میں دیکھی ہے، کیوں؟ ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ صف میں جگہ مل جائے۔ اب چونکہ جگہ تنگ ہے، آیا دیر سے ہے، لہذا ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا۔ اس تصادم سے، مختلف عادتوں کی بنا پر اس ممکنہ تصادم سے بچنے کی صورت کا نام یہ ہے کہ انسان راہ عادت کو چھوڑ کر راہ عبادت کو اپنا لے۔ لیکن المیہ ملت اسلامی کا یہ ہے کہ وہ عبادت کے بجائے عادت کی راہ کو اپناتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ معاشرے کا امن و سکون درہم برہم ہونے لگتا ہے نا؟ بھائی تم ملازمت کرتے ہو، یہ تمہاری عادت ہے، کاش تم اس کو عبادت سمجھ کر کرتے، تو ملازمت کے لمحات میں تمہارا ایک منٹ بھی سیل فون پہ نہ گزرتا۔ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ ملازمت کے لمحات تمہارے ایمپلائرز نے تم کو، اور تم نے معاہدے کے تحت قبول کیے ہیں کہ یہ وقت کمپنی کی ملازمت میں گزرے گا، لہذا اس وقت کو دوستوں کے ساتھ گفتگو میں نہ گزارا جائے تاکہ رزق حلال رہے۔ یہ ہوگی عبادت۔ لیکن اگر ملازمت پر ہو اور ملازمت میں ملنے والے بریک کو زیادہ وقت، دیے ہوئے وقت سے زیادہ لنچ میں گزار لیں، کافی بریک میں گزار دیں، سیل فون پر گفتگو میں گزار لیں، یہ ہے عادت۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے ہیں، تجارت تو ہے لیکن بڑی بات ہے اگر اس تجارت کی عادت کو عبادت بنا دے۔ تجارت عبادت کیسے بنتی ہے؟ تو میں قرآن مجید سے آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ جمعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ साहिबान ईमान, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए पुकारा जाए, फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ पढ़ो जिक्र इलाही के लिए, व ज़रुल बैअ, और तिजारत को रोक दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे हक में बहुत अच्छा है अगर तुम समझते हो। फिर इरशाद हुआ फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब नमाज पढ़ चुको दोबारा जमीन में मुंतशिर हो जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जिस रोजी को छोड़कर आए थे फिर रिज़्क़ तलाश करो। पहली बात ज़हन में बिठा लीजिए, दूसरे मज़ाहिब में हफ्ते के 7 दिनों में एक दिन तातील का है, एक दिन छुट्टी का है। मुसलमानों में कोई दिन छुट्टी का नहीं है। इसलिए कि इस्लाम अमल का दीन है और वो मुसलमानों को अमल करने वाली कौम देखना चाहता है, छुट्टी मनाने वाली कौम नहीं। लेकिन एक लफ्ज और जिसकी जानिब आपकी तवज्जो दिला रहा हूं, पहले क्या कहा था, जब अजान हो तो तिजारत रोक दो, जब नमाज हो जाए दोबारा तिजारत में चले जाओ। लेकिन अब जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो ये फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अब जाकर दोबारा अल्लाह का फजल तलाश करो। भाई पहले रिज़्क़ था, जब याद इलाही के बाद हुआ तो अल्लाह का फजल हो गया। बस अजीजों, मैं गुज़िश्ता 4 रोज से आपकी खिदमत में यही अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया की रंगीनियों में अगर वो याद रहे तो कामयाबी है, अगर वो याद न रहे तो खसारा है। अब कुछ ज्यादा वक्त लग गया हमारा इस खसारे की तशरीह में। होता यह है कि गुफ्तगू करते हुए कुछ उमूर ऐसे सामने आते हैं और अहबाब की ख्वाहिश ये होती है कि इसको तशना न छोड़ा जाए। कोशिश मैं भी यही करता हूँ कि हर चीज़ एड्रेस हो जाए जहाँ जहाँ मुमकिन होता है। मसलन दूसरी तकरीर में मैंने कानून फितरत और कानून कुदरत की बात की, तो मेरे कुछ दोस्तों ने आकर ये कहा कि इस पर बात हो। लेकिन अगली तकरीर में हम सूरह असर पे पहुँचे और सूरह असर की जुज़ियात पर कुछ गुफ्तगू हुई। अब इंशाअल्लाह आज अगर हम इस मंजिल को तय कर सके तो कल से हम दोबारा मुत्तसिल हो जाएंगे कानून फितरत से और कानून कुदरत से। तो अगर अल्लाह याद रहा तुम कामयाब हो, अगर याद इलाही से गाफिल हो गए तो खसारे में। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इंसान घाटे में, इंसान खसारे में। कल की गुफ्तगू, खसारा एक तिजारती इस्तिलाह है। खसारा उसी चीज में होता है जिसमें बढ़ने की उम्मीद हो। पत्थरों को खसारा नहीं होता, पौधों को खसारा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि पौधे एक हद में कैद है, जमादात एक हद में कैद है। जो आगे बढ़ सकता है वही होगा खसारा और वही होगा मुनाफा। ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। इसका मतलब यह है कि इंसान इस काबिल है कि अपनी हालत को बदल सके। जब बदलेगा तो दो ही सूरतें, या तो तरक्की की तरफ जाए या तनज़ुली की तरफ जाए। अगर तनज़ुली की तरफ गया तो है घाटा, अगर तरक्की की तरफ गया तो है नफा, तो है मुनाफा। ठीक है ना। अच्छा, खसारा कैसे होगा, घाटा कैसे होगा? तो सुनो, अब कायनात की क्रिएचर की तकसीम क्या है। पहले क्या है? जमादात, दूसरे क्या है? नबातात, तीसरे क्या है? हैवानात, चौथा कौन है? इंसान। आलम इंस यहां पर है। तो अगर इंसान गिरेगा तो क्या बनेगा? जानवर बनेगा। अच्छा, इंसान के ऊपर क्या है? फरिश्ते, फरिश्तों से ऊपर क्या है? परवरदिगार। अगर बढ़ेगा तो क्या बनेगा? फरिश्ता।
यहां तक इत्तेफाक है आपको। गिरा तो जानवर बना, बुलंद हुआ तो फरिश्ता बना। लेकिन कुरान मजीद ने कहीं ये बात ही नहीं की कि इंसान गिरकर जानवर बनता है। भाई मेरी फिक्र का साथ दीजिएगा, गुफ्तगू का ये हिस्सा कुछ अदक है लेकिन बहुत जरूरी है। कुरान मजीद ने कहीं नहीं कहा कि इंसान गिरकर जानवर बनता है। ने कुरान मजीद ने कहा जब गिरने पर आता है हम कल अनाम बलुम अदल, जानवरों से ज्यादा बदतर होता है। ये जानवरों से ज्यादा बदतर क्यों होता है? इसलिए अजीजों कि जानवर के पास ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात में तमीज नहीं है। जानवरों के पास ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात में तमीज नहीं है, इसलिए जानवर गलती कर लेता है। ठीक है ना? बकरी उसके सामने सब्जा आ जाए तो क्या करेगी? खाएगी। ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे मालिक का है या मेरे पड़ोसी का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकरी का काम है सब्जा देखे और चढ़ जाए। अगर अजीजों इंसान भी रिस्क देखकर खाने पर आमादा हो जाए, वाह वाह वाह। मैंने 2005 में एक जुमला कहा था इसी मेंबर से, और अजीजान मोहतरम वो ये था कि जानवर और इंसान में फर्क यह है, इंसान और हैवान में तमीज यह है कि हैवान जो सामने आए खा लेता है, हैवान जो सामने आए खा लेता है, और इंसान वो होगा जब खाने के लिए सामने आए तमीज करे हलाल है या हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैवान की तारीफ क्या है? जो खाने पीने में जायज और नाजायज की तमीज ना करे वो हैवान, जो तमीज कर ले वो इंसान। तो चूंकि जानवर के पास कुव्वते मुअय्यदा नहीं थी इसलिए गलती कर बैठा, तो जानवर की मजम्मत नहीं की। इंसान के पास गलती से रोकने वाली कुव्वत थी फिर भी गलती कर ली। अब ये जानवर नहीं है, हम कल अनाम है बलुम अगल, जानवरों से ज्यादा बदतर है। बात वाज़ेह हुई? ये तो हो गया खसारा। अब दूसरे पहलू की तरफ आओ। इंसान क्या बनेगा? भाई किसी ने मुझको नहीं टोका, मैंने कहा इंसानों से बुलंद कौन है? आप सबने कहा फरिश्ता। फरिश्ता बुलंद है? आप भूल गए, इंसान है मस्जूद मलाइक। अब कैसे अर्ज करूं? अब जो जुमला कहने जा रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप पहुंच गए तो आपकी समातों को मैं सुभान अल्लाह कहूंगा, और अगर नहीं पहुंच सके तो मैं तशरीफ ही नहीं करूंगा। और वो ये कि खल्लाक़े आलम ने आदम से पहले मोहम्मद को खल्क़ किया, किया ना? और आदम के बाद नूह को भी खल्क़ किया, इब्राहिम को भी खल्क़ किया, मूसा को भी खल्क़ किया, ईसा को भी खल्क़ किया, तौरात भी भेजी, ज़बूर भी भेजी, इंजील भी भेजी। किसी मौके पर फरिश्तों को जमा करके कहा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कि भाई देखो फरिश्तों, अब मैं एक नबी बनाने वाला हूं सुभान अल्लाह, जो खातिमुन नबिय्यीन बनकर दुनिया में आएगा। ऐ फरिश्तों देखो अब तैयार हो जाओ कि मैं तौरात भेजने वाला हूं। वजह क्या थी कि जब तख्लीक़ आदम हो रही थी तो फरमाया फरिश्तों मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। नारे हैदरी। अब ये ना समझिएगा कि तशरीह नहीं करनी थी तो कहा क्यों। अज़ीज़ान गिरामी, आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया है आने वाली गुफ्तगू के लिए कि जब हम इंसानी आदत पर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप समझेंगे खल्लाक़े आलम बस फैसला कर लेता है। ये थोड़ी कहता है फरिश्तों देखो अब मैं सूरह तहरीम भेजने वाला हूं। लेकिन आदम की खिलकत पर बाकायदा ऐलान क्यों हुआ था? सोचिएगा। हम फिर किसी दूसरी नशिस्त में, किसी दूसरी सोहबत में इसी अशरा अला में यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा,
इंसानों से बुलंद क्या है? फरिश्ता नहीं, फरिश्ता तो बुलंद नहीं है, फरिश्ता तो सजदा कर रहा था। इंसान मौजूद मलाइक है, इंसान फरिश्तों का किबला है। गुज़िश्ता बरस कहा था तुम्हारी इबादत बेहतर है या फरिश्तों की? आपके ज़हनों में है आपकी इबादत बेहतर है। इसलिए बस एक जुमला सुन लो, जल्दी से गुजर जाऊं। मौला फरमाते हैं तुम्हारी इबादत वो इबादत है जिसमें रुकू भी है, सुजूद भी है, क़याम भी है, क़ुऊद भी है। मतलब की इबादत में जो सजदे में है वो सजदे में है, जो क़याम में है वो क़याम में है, जो रुकू में है वो रुकू में है। तुम्हारी इबादत तमाम अरकान के साथ है, उनकी इबादत सिर्फ एक रुकन के साथ है। तुम से फरिश्ता बेहतर नहीं है, ये तो हमारी आदत है। मैं इबादत तक ले जाऊंगा। तुम्हारी आदत है कि जब किसी इंसान से मुतासिर हुए कहने लगे ये फरिश्ते जैसा है। सुभान अल्लाह। क्यों कहा? किसी को सताता नहीं है, बेज़रर है, नुकसान नहीं पहुंचाता, गिबत नहीं करता, धोखा नहीं देता। वाह, फरिश्ता धोखा नहीं देता, फरिश्ता धोखा देने के काबिल ही नहीं है। फरिश्ते के पास उमंगे पैदा करने वाला नफ्स ही नहीं है। फरिश्ता काबिल तारीफ होता अगर गुनाह की ताकत होती और फिर गुनाह ना करता। ये कहते हैं हरीफे नुक्ते तौहीद हो सकाना हकीम, हरीफे नुक्ते तौहीद हो सकाना हकीम। निगाह चाहिए असरारे ला इलाह के लिए। अगरचे पाक है तीनत में राह भी उसकी, तरस रही है मगर लज्जते गुनाह के लिए। अजीजों, बस यही तो बात थी। फरिश्ता पहचान रहा था। तुमने बड़ी बात की आदत की बुनियाद पर किसी की तारीफ करते हुए कि इंसान फरिश्ते जैसा है। गोया कि इंसानी आदत यह है कि वो फरिश्तों में शामिल होना चाहता है। इबादत की मेराज ये है, इबादत की मेराज ये है फरिश्ता कुछ इंसानों में शामिल होना चाहता है। सुभान अल्लाह। फरिश्ता इंसानों में शामिल होना चाहता है। परवरदिगार इजाजत दे दे सैयदा के दरवाजे पर दर्जी बनकर चला जाओ। क्यों कि फरिश्ता जानता है तुम सोच रहे हो आदत की बिना पर। फरिश्ता इबादत पेश कर रहा है। अच्छा, इतनी देर जो ये आएगा दरे सैयदा पर कर क्या रहा था फरिश्ता? पहले इबादत। क्या भाई आसान करके कह दीजिए ना, इबादत तो बहुत वसी लफ्ज है। क्या कर रहा था? तस्बीह पढ़ रहा था, सजदा कर रहा था, क़याम कर रहा था, रुकू कर रहा था। आपका परवरदिगार इजाजत दे दे हसनैन के कपड़े लेकर चला जाऊं। तो इतनी देर तक जब ये जमीन पर आया तस्बीह की इसने, सजदे किए इसने नहीं। इतनी देर तक तस्बीह नहीं, तकदीस नहीं, फातिमा ज़हरा के आस्ताने की खिदमत कर रहा था। तो समझ लो तस्बीह और क़यामों को फिरूआत है, आस्ताने ज़हरा की खिदमत इबादत है। सुभान अल्लाह। इंसान बुलंद हो। अच्छा, तो फरिश्ते वाली बात तो हो गई खत्म। फरिश्ता तो बन जाए इंसान तो ये तो कोई तरक्की है ही नहीं भाई। तरक्की तो ये फरिश्ता बनना चाहे। अच्छा, हमारी बहुत सी ईदें हैं। ईद उल फितर तुमको याद है, ईद उल अज़हा तुमको याद है, ईद गदीर तुम सबको याद होगी, ईद मुबाइला सबको याद होगी। ये शब मेराज क्या है? मेराज नहीं पढ़ूंगा जितना मेरे उन्वान से मुताल्लिक है। ये मेराज क्या है? मेराज का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या करोगे? बुलंदी, ऊंचाई। तो हुजूर को मेराज हुई। मैं लफ्ज बदल रहा हूँ, तर्जुमे वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। हुजूर को बुलंदी हुई। बुलंदी उसको होती है जो बुलंद ना हो। तो हुजूर को क्या बुलंदी हुई? कुछ नहीं।
اور عید بھی کیسی، یہ عید بھی کیسی عید ہے، سارے مسلمان مناتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم لے گئے اپنے عبد کو، ٹھیک ہے نا، ہم لے گئے. مسلمان کو کرنی ہے ریپرزنٹیشن، دکھانا ہے کاغذ پر حضور معراج پر کیسے گئے. بھائی سننا، سبحان اللہ. تو ایک تصویر بنائی، ایک گھوڑا بنایا، اس میں 2 پر لگا دیے، سبحان اللہ. براق بنا دیا کہ اس پر بیٹھ کر گئے تھے.